السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وایسنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ ہم سورہ انعام کی 9 آیت کر چکے ہیں۔ یہ مدنی سورہ، یہ مکی صورت ہے۔ پچھلے 4 بھی ہم مدنی صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، مدینے کے متعلق، جو یہود کے متعلق، نصارہ کے متعلق، منافقین کے متعلق اور وہ خجرت کے قبائل کے متعلق، جو ہمارے آستین تھے، جو ڈائریکٹ گوریلا وارفیئر میں نہیں تھے۔ یہاں مکی دور ایسا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہے، آمنا سامنا ہے، سامنے سامنے بولتی ہیں، سامنے سامنے گالیاں دیتی ہیں، سامنے سامنے بکتی ہیں۔ یہ بھی زیادہ کوفت کا باعث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ضیق میں آ چکی تھی، دونوں طرف سے مطالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بولتے کوئی معجزہ دکھا دو، تم ہی کہتے ہو نا موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھائے، اتنے معجزات، 9 یا 11 معجزات پے در پے، وہ عصا کا اتنا بڑا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے عظیم الشان معجزات، آپ ہی تو کہتے ہو، اب آپ ہی پیغمبر ہو، آپ کہتے ہو آپ پیغمبر ہو، آپ معمور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے معمور کیے گئے ہیں، آپ منصب پیغمبری پر معمور ہیں، تو کیوں نہیں ایک چھوٹا سا ہی معجزہ دکھا دیتے؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کھلتی تھی یہ باتیں، بہت مشکل ہوتا تھا ان کو سنبھالنا یا اسے برداشت کرنا، اسے سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ کا یہ موقف کیا تھا؟ کوئی معجزہ نہیں دکھانا، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ٹھنڈے باتوں میں چل رہا ہے، جب یہ کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو ہم پڑھیں گے، ہم مطالعہ کریں گے کہ ہماری بھی جان سکھ میں آ جائے گی، ہماری بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رقت طاری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ، اگر تمہیں استطاعت ہے تو جاؤ، سیڑھی لگاؤ اور آسمان میں چڑھ کر دکھاؤ ان کو، اگر معجزہ اتنا ہی چاہتے ہو، اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو، زمین میں سرنگ بنا لو، ان کو دکھا دو یہ معجزات۔ ہم نہیں دکھانے والے، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھانے والے۔ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ جو آپ کے قلب مت اتھر پر جو نازل ہو رہا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ یہی ہے۔ وہ تو حصی معجزات تھے، اب یہ حصی معجزات، حصی بولے تو کیا، جو دیکھ سکتی، اب ان کو کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ جاؤ، جب آپ قرآن لاتی تو ہمیں نظر آئے کہ آپ قرآن آسمان سے لے کر اتر رہے ہو، یا آپ کے ساتھ ایک فرشتہ آ جائے، یا اور ایسے بڑے بڑے مطالبے کرتے تھے کہ مکے میں جو پتھریلی زمین ہے اس میں ایک گلستان کھلا دو، ایک باغ کھلا دو اس میں، اور آپ اتنی مشکل میں ہیں، اتنی تنگی میں ہیں، فاقہ کشی میں ہیں، اور آپ کے یہ جو صحابی ہے انہوں تو خلت کا شکار ہیں، ہر چیز کی کمی ہے ان کے پاس، سے کھانے کی بھی کمی، سارے ساز و سامان کی کمی، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے واسطے ایک سونے کا گھر بنا لو، ایک محل بنوا دو، اگر آپ پیغمبر ہو تو ایک ایسے معجزہ دکھا دو کہ ہم مان جائیں، آپ کو مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنا گرا گزرتا ہوں گا، کیسی تکلیف ہوتی تھی ہوں گی، اور وہ ادھر اللہ کا موقف سٹرونگ ایک دم، نہیں دکھانا، کوئی معجزہ نہیں دکھانا ہے، لائیں تو لائیں، نہ لائیں تو نہ لائیں۔ یہ جو ہے قرآن میں یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، لانے والے لائیں گے، نہیں لانے والے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو
उतने अच्छे मेरे औसाफ से मुत्तसिफ करके जो भेजा था, कैसे मौजूदा दिखाए, तखलीकी खल्लाकी सन्नाई के मौजूदा दिखा डाले। कितने लाए? 12 आदमियों के सिवा कोई नहीं लाया। तो लाने वाला लाता है, उसको मौजूदे की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर एक उनसर है, उसके दिल में एक उनसर है वैदानियत का, उसे इन्वोक करने के लिए ये याद दहानी है, ये जिक्र है। एक बहुत अच्छे वर्डिंग्स में एक रिवायत इनकी है, डॉक्टर इसरार अहमद की। वो कहती हैं कि ये जिक्र आला इल्ला है। आला किसे बोलते हैं? फबियाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या मतलब इसमें? आला का मतलब क्या है इसमें? नहीं याद आ रहा? फबियाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा क्या है? अल्लाह की किन किन नेमतों को जो हमको झुटलाओगे? कौन से नेमतों को नहीं झुटलाते। हाँ, नहीं, किन किन नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह की बेहिसाब बेशुमार बे इंतहा तुम्हारे ऊपर नेमता है ना, किन किन नेमतों को झुटलाती तुम्हें? किस किस का शुक्र अदा किसका करती? अदा करते सारी जिंदगी सर्वसचो शुक्रिया अदा करे तो भी एक छोटी सी इनायत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। तो ये अल्लाह कह रहा है किन किन नेमत को झुटलाओ? तुम झुटला रहे हो। अब ये मक्की जिंदगी में क्या है? हर नेमत को झुटला रही। क्या बोल रही हूँ ना, अल्लाह दे रहा है, लेकिन सिफारिश कौन कर रही है? हमारे लात उज़्ज़ा मनात, इनकी सिफारिश से अल्लाह दे रहा है। खालिक अल्लाह ही है, देने वाला वही है, लेकिन सिफारिश की इन लोगों की। तो इन लोगों को भी शामिल कर लेते थे। और इन लोगों को भी क्या कहते थे? ये भी दे सकती हैं, ये भी डेलीगेटेड है, इनके पास भी डेलीगेटेड पावर्स है। अल्लाह देकर है इनको भी पावर्स है, इन्हों भी कर सकते हैं, हमारी मुरादों को बदला सकते हैं, हमारे तकलीफों को दूर कर सकते हैं, मुश्किल कुशाई इन्हों भी कर सकती हैं, हाजत रवाई इन्हों भी कर सकती हैं। ये इनका अंदिया था। तो ये जो सूरत है, सूरत अनाम, अनाम का मतलब क्या? मवेशी। मवेशी को वो लोग असासा समझते थे, असेट समझते थे। तो यहाँ जिक्र पूरे का पूरा क्या है? आला इल्ला पर है, यानी अल्लाह की नेमतों पर है। अब यहाँ मक्की दौर में इनको दिखाना यही है ना, इनको वहदानियत पर लाना है, रिसालत पर इनका ईमान बहाल करना है, रिसालत पर इनको लाना है, इनके दिल में रिसालत का, ये मनसब रिसालत पर हुजूर फायज हुए हैं, वो भी इनके दिल में जागोजी करना है। और आखिरत की एक बात है जो ये सिरे से मानते ही नहीं, इनको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, तो ये भी बिठाना है दिल में। तो इसके वास्ते अल्लाह आला इल्लाह का तस्किरा कर रहा है, जिक्रा भी आला इल्लाह। ये इतनी नेमतें, ऐसा है, अल्लाह ने ये दिया है, सारी नेमतों का जिक्र है। उसके बरक्स आराफ हम पढ़ेंगे, उसमें अय्यामिल्लाह का जिक्र है। अय्याम किसे बोलती? यौम की जमा अय्याम, यौम की जमा अय्याम। अय्याम अल्लाह उसे कहता है जो बड़ी बड़ी अक़वाम को निस्तो नाबूद कर दिया आने वाहिद में। क्यों? बिजुनूबिहिम, अल्लाह कहता है, इसे पिछली आयत में हम पढ़ चुके, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाह की वजह से। उन्होंने नहीं मानते थे, पैगंबरों को झुठलाते थे, उनको कत्ल करने की कोशिश करते थे, कितने ही कत्ल भी कर दिए इस्राएली पैगंबरों को, जकरिया हैं, याह्या हैं, कितने कत्ल कर दिए। और इलियास अलैहिस्सलाम को तो जिला वतन करके पहाड़ों में बसेरा करना पड़ा, वनवास इख्तियार करना पड़ा उनको, ऐसी तकालीफ दिया करते थे। तो उसे अल्लाह कहता है अय्यामिल्लाह, बहुत बड़ा दिन, जबकि अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसको किया? आद की कौम, लूत की कौम, हूद की कौम, हाँ? कितने बड़े बड़े अक़वाम, शुएब अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल देते रहे तालीमात। कितने आए? बमुश्किल 82। कितने सताए गए? अल्लाह कह रहा है आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखिए आए नबी, आपके कितने साल गुजरे हैं? 10, 11, मुश्किल से 11.5, 12 साल। हमारा वो बंदा, वो नूह, कैसा 9.5 साल उनके बर्दाश्त करता रहा, उनकी सख्तियां, उनकी तकलीफें, उनके मार धाड़, सब कुछ, मारपीट सब कुछ करते थे वो, ये सब बर्दाश्त करता रहा। तो आप भी उन जलीलुल कद्र उलुल अज़्म पैगंबरों की तरह सब्र कीजिए। कोई मोजज़ा नहीं लाने वाले हम, क्योंकि मोजज़ा आ गया तो बात खत्म हो जाएगी, तंटा चुक जाएगा, खजिया हो जाएगा, फैसला खत्म हो जाएगा, फिर अजाब ही आना है, दूसरा कुछ भी नहीं। इट्स ए फैक्टर, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, टाइम फैक्टर, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। टाइम हो गया, फरिश्ता। अब इंसान की जिंदगी में भी देखिए, फरिश्ता कब आता है भाई हमारी जिंदगी में? सारी जिंदगी नहीं आता, कब आता है? रूह कब्ज करने। हाँ, वो खब्ज करने आता है, खत्म नहीं जिंदगी, जिंदगी हाँ, खत्म, आखिरी वक्त आता है, तब तो मोहल्लत भी नहीं मिलती।
मालूम भी नहीं होता, परेशान हाल, डॉक्टर दम बहुत खड़े रहते, कुछ भी नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, प्यारा जाता रहता है, बादशाह सलामत जाते रहती, बड़े बड़े तबीब शाही डॉक्टर क्या कर सकती, कुछ भी नहीं सकते, फरिश्ता आता है, दिखता भी नहीं, लेकर जाता है। और जब वो फरिश्ता आ जाता है किसी की जिंदगी में, उसकी जिंदगी का वक्त आ गया, अजल मुसम्मा आ गया। ऐसा ही किसी अक़वाम की जिंदगी में, किसी कौम के जिंदगी में ये अगर वक्त आ गया, फरिश्ता आ गया, फरिश्ते नाजिल होते हैं तो खातिमे के लिए होती, अजाब के लिए होती हैं, कोई अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात भी हुई, खुशखबरी भी लाए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी है, बाइक वक्त खुशखबरी भी थी, लूत अलैहिस्सलाम के कौम के वास्ते अजाब भी था। वो रेयर हुआ है, ऐसा बहुत रेयर हुआ है, मगर हमेशा अय्यामिल्लाह अल्लाह उसे रेफर करता है जो बड़ी फलती फूलती दबदबे वाली, शान और शौकत वाली, तमद्दुनी हैसियत से, उनके तिजारती एतबार से, माशिरती सारे एतबार से जो उरूज पर रहती है, इनको कहा जा रहा है क्या है मुशरिको। तो वो उतनी बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने आने वाहिद में तहस नहस कर दिया, जिनको बड़ा तमक्कुन दिया था। अल्लाह कह रहा है पिछली आयत में, तमक्कुन दिया था, बहुत बड़ा इख्तिदार दिया था, सब कुछ दिया, अल्लाह ही तो दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने कुफरान नेमत किया। जब रसूल आए तो उनकी आयत को झुटलाया, रसूलों को झुटलाया, तो उसकी वजह से उन्हें बर्बाद कर दिया, बहुत मोहलतें दी, उसके बाद बर्बाद कर दिया। तो आई नबी, यहाँ भी अल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि इन्हें और कुछ थोड़ी मोहलत दी जाए, इन्हें कोई मोजज़ा ना दिखाया जाए, कोई फरिश्ता ना नाजिल किया जाए, क्योंकि इनमें जो खैर वाले, जो खैर की रमक भी अगर दिल में है, तो जिनके दिल में है वो आ जाएंगे इस्लाम की तरफ। अगर फरिश्ता आ गया, अज़ाब आ गया, तो पूरे की पूरी कौम चली जाएगी ना, नेस्त नाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या होगा, मोहलत खत्म हो जाएगी, ला युनज़ुरून, उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। तो ये बात पिछली गुजर चुकी। उसके बाद की आयत जो कितनी, 9वीं आयत, 9 हो गए थे नहीं, 9वीं आयत में क्या आया था, वलो जअलना मलकन ला जअलनाहु रजुलन वला लबसना अलैहिम मा यल्बिसून। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि फरिश्ता क्यों नहीं आया। अगर फरिश्ता, अल्लाह कह रहा है कि अगर हम फरिश्ते को भी लाते तो वो भी इंसानी शक्ल में ही आता। अगर फरिश्तों के ऊपर नाजिल होना था तो फरिश्ता फरिश्तों की शक्ल में आता। अब इंसानों के लिए लाना है तो गैबी शक्ल में फरिश्ता आया, तो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे, फरिश्ते की शक्ल में आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश करे कि आए जिब्राइल, मैं देखना चाहता हूँ आपका ओरिजिनल फॉर्म, आपकी ओरिजिनल हैयत क्या है, शक्ल सूरत क्या है, आपकी जिस्मानी साख क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो कैसा बताया अल्लाह ने, कैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नजर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल? बहुत ऊंचे आसमान को, आसमान। हाँ पूरे वो उनके पैरों के साथ हाँ, एक feathers, मगरिब तक, मसीह, गरीब हाँ, तक, हाँ पूरा बहुत बड़ा आसमान है। कवर हो गया था, ताप नहीं ला हाँ सके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा आसमान कवर हो गया था। तो वैसी शक्ल में अगर फरिश्ता नाजिल हुआ तो ये क्या हालत होगी इन लोगों की। तो अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ते को भी अगर भेजना तो इंसानी शक्ल में ही भेजते, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वक्त वो जो हदीस है ना, ईमान क्या है, एहसान क्या है, ये जो हदीस आई बताने के लिए, तालीम देने के लिए, तो तब भी इंसानी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बहुत हिफाजत के साथ, सफेद फार्म, एकदम अच्छे बाल, सब कुछ ठीक ठाक, बहुत क्लीन, इसमें बहुत इन्हमाक, बहुत एहतमाम के साथ फरिश्ता आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एकदम सामने आकर बैठ गए। कोई नहीं पहचान सके कि ये है कौन, इंसानी शक्ल में इंसान ही समझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं पहचान सके। बाद में हो जाने के बाद जब बाहर निकले, फरिश्ता बाहर निकला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहर निकले, उसके बाद रूपोश हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्कर हुआ कि यहाँ एक लोग तो जानना चाहिए था, लोगों को तो मालूम होना चाहिए, तो छोटी सी बस्ती है, मालूम होना चाहिए था कौन है ये। अच्छा ये कोई है नहीं, तो जाओ देखो, दौड़ा आदमियों को, राइट लेफ्ट आगे पीछे देखो, कहाँ गया, कहीं नहीं है। तो तब अक्कर हुआ कि अच्छा ये जिब्राइल थे जो तुम्हें ईमान सिखाने आए थे, इस्लाम की तालीम देने आए थे, क्योंकि तुम क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेश्चंस करे तो तुम्हें मालूम होता है कि क्या है, तफसीलात मालूम होती,
तुम्हें जो नहीं मालूम होता उसे सवाल करके तुम जानना चाहिए। तुम चूंकि क्वेश्चन नहीं करते, सवालात नहीं करते, तो वो तादीब की वजह से, अदब की वजह से लोग सवालात नहीं करते थे। जो हुजूर बोले वो मान लेते थे, नजरें झुकाए रखते थे। बड़ा अदब, अदब का ये था, अदब का उनसर वहाँ मजहर था, अदब का था। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर हम फरिश्ते उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में ही उतारते। इस तरह उन्हें इसी शुबा में मुब्तला कर देते, फिर भी इसी शुबा में रहते कि जिसमें अब ये मुब्तला है। अब भी जो शुबा शक व शुबा कर रहे हैं ना, वही शक व शुबा आगे भी करते, जब अगर हम फरिश्ता भी निगाह उतार देते। तो ये सब किस लिए कहा जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ऐसा हुआ भी तो ये लोग ईमान नहीं लाने वाले, फरिश्ता आया भी तो ये लोग ईमान नहीं लाने वाले। तो आप ये जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो बात चल रही है, अल्लाह जानता है। खुसिला माफी सुदूर, हमारे दिलों में जो चल रहा है वो भी जानता है ना। तो अल्लाह को मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहती, कितनी आपके दिल में मांग है, कितनी तलब है, कितना आप चाह रही कि एक छोटा सा ही मोजज़ा का इज़हार हो जाए ताकि ये कमबख्तों की जबान बंदी हो जाए। तो अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी, कितना भी हम लाने वाले वैसे ही लाएंगे विदाउट मोजज़ा, और नहीं लाने वाले आप जो भी कर दें, फरिश्ता भी नाजिल कर दें, आप कुछ भी कर दें, आपको कितने ही मोजज़ात दे दें, ये लोग लाने वाले नहीं। जो लाने वाले हैं वो वैसे ही लाएंगे। ये कुरान है जो आपके लिए काफी है, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है, ये वाक़ियतन सबसे बड़ा मोजज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मी, पढ़े लिखे नहीं, मदरसे के नहीं, मदरसे को गए नहीं, मदरसे की सूरत शक्ल देखे नहीं, आपके क़ल्बे अत्थर पर नाजिल हो रहा है, बड़ी बड़ी सूरतें नाजिल हो रही, बड़ी बड़ी सूरतें। अनाम कितना बड़ा है, सूरह बकरा कितना बड़ा है। अनाम तो एक ही नशिस्त में, एक ही बैक वक्त नाजिल हो गई। अब उतना याद रखना और उतना कातिबों से लिखवाना क्या मामूली काम है? कितना बड़ा मौजूदा है। हम थोड़ा सा बाय हार्ट नहीं कर सकते, हर जुम्मा पढ़ती सूरह का पूरा बाय हार्ट नहीं होता हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार नाजिल हो रहा है, 70,000 फरिश्तों की जड़ों में नाजिल हो रहा है, और आप उसी वक्त बुलाकर कातिबाने वही से किताबत भी करवा देते। तो ये कितना बड़ा मौजूदा है, इससे बड़ा मौजूदा और क्या हो सकता है। अब यहाँ कहा जा रहा है वलक़द इस्तुज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ा बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी ऐसा ही बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा। लक़द कई को आता है, एक हो गया सो इंसिडेंट को बयान करने, अगर से ऐसा होता बयान तो करने के लिए। लक़द जरूर, अलबत्ता, हम उर्दू में अलबत्ता बोलते हैं। लक़द इस्तुज़िया, हंसी की गई, मजाक उड़ाया गया, इस्तेहज़ा किया गया। इस्तेहज़ा उर्दू में भी यूज होता है, मजाक उड़ाना, तमस्कर करना, मौकरी करना, नखल उड़ाना, आवाजें कसना, सब कुछ आ जाता है इसमें, ऑल नेगेटिव वैल्यूज। उनकी भी हंसी उड़ाई गई, मजाक उड़ा गया। बिरुसुलिन, रसूलों के साथ, रसूल जमा रसूल की, रसूलों के साथ यही किया है इन लोगों ने। मिन क़ब्ल का, आपसे पहले जो भी गुजरे ना उनके साथ। फ़हाक़ा, हाक़ा या हाक़ू, घेर लेना, तंग कर देना, उनका अरसा या हयात तंग कर देना, तकलीफ देना। फ़हाक़ा तो घेर लिया, बिल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने सखीरू मजाक उड़ाया, मिनहुम उनमें से, माँ कानू बिही यस्ताज़िऊन जो उन्हों कर रहे थे, जो इस्तेहज़ा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार वही चीजें, वही बातें, वही उनके काम मुसल्लत होकर और रही, उनके ऊपर मुसल्लत होकर रहा। वो उन्हों भी डिमांड करते थे अजाब लाओ, अजाब लाओ, अजाब आ गया, पैगंबरों को और उनके साथियों को बचा लिया गया और दूसरों को हलाक कर दिया गया। तो आपके साथ ये कोई नई बात नहीं है, आप कोई नए नवेले पैगंबर नहीं हैं। कितने ही आ चुके और कितनों का ही मजाक तमस्कुर इन्होंने उड़ा चुका, और उनको तुमसे पहले जो भी आए उनका भी मजाक इन्होंने उड़ाया। मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार अंजाम क्या हुआ? जो उन्होंने चाहते थे, जिस चीज का मजाक उड़ाते थे, वही उनको हाहा घेर लिया, वही मुसल्लत होकर रहा उनके ऊपर, जिसका वो मजाक उड़ाते थे, और खत्म हो गया, नसीम मनसिया कर दिया अल्लाह ने।
ये सब तसल्ली की बातें हैं। बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हमें याद रखना चाहिए कि ये मक्की दौर है, मक्की दौर का आखिरी हिस्सा है। ताइफ का गुजर चुका, सारे हालात खराब हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां रहना 2 भर हो गया है। आपके साथियों को भी 2 ट्रिप्स लोगों के जा चुके हैं, हबशा को हिजारत कर चुके हैं। यहाँ के तंगी बर्दाश्त कर ना सको, चले गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए। अपना वतन छोड़ना, अपना घर बार छोड़ना, अपने अजीजों को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन कितने ही चले गए, पहले कुछ गए, उसके बाद 70 के ऊपर चले गए। उसमें हजरत उस्मान गनी भी थे, अपनी अहलिया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर के साथ चले गए। तो ये हालत थी वहां पर, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसका भी एक वक्त मुकर्रर था, हिजरत अभी नहीं हुई है। हिजरत का वक्त तो करीब है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम है कि कब होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रेडी बैठे हैं, 2 ऊंटनियों को तैयार करके, ज़ादे सफर तैयार करके, और बार बार पूछ भी रहे हैं कि कब होगा, आई क्या, हुक्म आया क्या, इज़्न आया क्या, इजाजत आई क्या। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक वक्त दोपहर में आती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर में कभी नहीं जाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त जाती। हजरत आयशा बयान करती, उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, तब 9 साल की उम्र में हुई ना। तो उन्होंने बयान करती है वाकया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आए, और जब ये खुशखबरी सुनाई कि हिजरत का वक्त आ गया, तो एकदम फरते मुसर्रत से रोने लग गए हजरत अबू बकर सिद्दीक। फिर वो जो उनका वो बात का हिजरत का वाकया जो हुआ, गारे सोर में 3 दिन रहे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अब कहा जा रहा है, अय्यामिल्लाह की बात आ रही है। कुल सीरू फिल अर्दी सुम्मंजुरू कैफा कान आकिबतुल मुकज्जिबीन। चलो दुनिया में चलो फिरो, सीरू सारा या सीरू से, चलो फिरो जमा का सीगा है, फेले अमर है। चलो फिरो, जाओ, देखो, फिल अर्दी जमीन में, सुम्मंजुरू, उन्जुर, नजरा यंजुरू बाबे नून से, बाबे नून से आता है उन्जुर, फेले अमर का सीगा है, देखो। अब ये वो अलिफ आ गया तो जमा का सीखा है, तुम सब देखो। उन्जुर एक आदमी के लिए कहा जा रहा है, देख, और ये उन्जुरु सबके लिए कहा जा रहा है, देखो। सुम्मंजुरु, फिर तुम देखो, कैफा काना, क्या थे, क्या हुआ, आखिबतुल मुकज्जिबिन, आखिबत का तो अंजाम, मुकज्जिबिन कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकसीब से है, यानी झूठलाने वाले, हर चीज को झूठलाने वाले। अब उन लोगों का क्या अंजाम हुआ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा जा रहा है। उनसे कहो, ये जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, इतने मतालिबात की बौछार कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपका अरसाए हयात यहाँ तंग हो चुका है, आपका रहना जीना यहाँ दोभर हो चुका है, तो इनसे कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो, झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो वही अंजाम तुम चाहते हो क्या? इट इज अंडरस्टूड, वही अंजाम तुम चाहते हो, इसलिए तुम झुटला रहे हो। झुटलाने वाले का अंजाम तुम्हें मालूम है। तुम यमन की तरफ जाते हो तो बहुत सी अक़वाम जो अय्यामिल्लाह का शिकार हो गई, वो नजर आती तुम्हें, उनके खंडर नजर आती, कैसे बड़े बड़े शाही महल पहाड़ों में तराशे हुए, सोच भी नहीं सकता कोई, इतने ऊंचे ऊंचे बड़े आलीशान। कौम समूद कही थी, कौम आद, कौम लूत, ये सब कितने बड़े इख्तिदार वाले थे, दबदबे वाले थे। चलो फिरो, देखो तो मालूम होगा तुम्हें। गुजरी हुई कौमों के आसार कदीमा जो है ना, और उनके तारीखी कहानियां, ये तुम्हें गवाही देंगे। चले गए तो यमन की तरफ और शाम की तरफ, ये तुम्हें गवाही देंगे, ये तुम्हें बताएंगे अपनी ज़बान हाल से। तुम्हें देखे तो मालूम हो जाता है कि उनका क्या हाल हुआ, सदाकत को, हकीकत को, और ये जो आयातिल्लाह आती, जो तालीमात आती, उनसे मुंह मोड़ने वालों का, और बातिल पर डटे रहने वालों का, हक पर नहीं आने वालों का क्या होता है अंजाम। किस तरह ये कौमें इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गई, ये तुम्हें मालूम होता है। कब मालूम होता है? तुम जाते ना, जरा गौर करो, यमन की तरफ भी जाती तुम, सर्दी में यमन की तरफ जाते, गर्मी में शाम की तरफ जाते, क्योंकि ये यमन गर्म रहता है, शाम ठंडा रहता है। तो ये दोनों वक्त जो तुम्हें काफिले लेकर जाती, कारवान तिजारती काफिले तुम्हारे जाते हैं, जरा आगे पीछे देखो, तुम्हारे अतराफ अकनाफ देखो, तुम्हें ये तारीखी शवाहिद तुम्हें नजर आती। ये क्या वास्ते हुए, ये झुटलाने की वजह से हुआ। तुम भी झुटला रहे हो, तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। कुल लिमन मा फी समावाति वल अर्द,
अब फिर आफाकी आयत की तरफ इतना सब बयान करके अल्लाह ला रहा है क्या कलाम का ये कैसा रवानी कैसी है देखिए, एक दरिया चला रहा है, एक दरिया बह रहा है। अब हम अगर कोई चीज लिखने बैठ जाए, आप कोशिश करके देखिए, ऐसी सलासत, ऐसी रवानी के साथ, ऐसी फसाहत, ऐसी बलागत हो ही नहीं सकती। ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हमें अच्छा मालूम हो जाता है क्या क्या चीजें कैसा कैसा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ला कर रहे, किस बात को उजागर करना, किस बात को हाईलाइट करना, क्या बात उनके दिल में बिठाना है, उस तरफ अल्लाह कैसा लाता है। एकदम अगर हमें बोलना तो क्या करेंगे, जोर से बोल डालेंगे, क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आता, क्या तुम्हारी पैदाइश तुम्हें मालूम नहीं होती, क्या तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हें जाने तो भी तुम्हें मालूम हो जाता है ना, अल्लाह ये कहे और ये रसूल को भेजा है। हम कैसा बोलेंगे, ऐसा इंसानी तरीका, ऐसा अल्लाह का तरीका कैसा है। एक इतना एक मुबालिगे के साथ एक तबलीग अंदाज में ला रहा है, बाद में अपनी बात लाता है। क्या कह रहा है अल्लाह, कुल लिमन मा फी समावाति वल अर्द, आप कह दीजिए, उनसे पूछो, उनसे कहो, आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो किसका है। पूछो, क्या जवाब देंगे ये, कुल लिमन मा फी समावाति, कुल कह दीजिए या पूछिए, अब यहाँ पूछने का ही है, पूछो उनसे, लिमन किसके लिए है, माँ जो, फिस समावात फी में आसमानों में और जमीन में क्या है, किसका है, किसका तसल्लुत है। कुल लिल्लाह कहेंगे, ये बेख्तियार कहेंगे, कुल लिल्लाह उनके जबान पर आ जाएगा। वो नहीं कहते थे कि तख्लीक किसी और की है, खालिक तो अल्लाह ही है, दूसरी चीजों में शुमार करते थे। उलूहियत में, तख्लीक में, सन्नाई में नहीं लेते थे, वो अल्लाह ही है, वो लात उज़्ज़ा हुबुल बनात वो नहीं है। कतब अला नफ्सिहिर रहमा, ये क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ ये किसका है बोले तो वो कहेंगे कि अल्लाह ही का है, सब कुछ अल्लाह ही का है। कतबा कब आता है, लिखी है, अल्लाह नफ्सी ही अपने नफ्स, आप पर, रहमा अल्लाह ने अपने आप पर रहमत लिख लिया है। ये एक लतीफ अंदाज बयान, पहले हुक्म हुआ कि उनसे पूछो जमीन और आसमान की ये तख्लीकात जो हैं किसकी है, अगर वो पहले एक सवाल हुआ, उसके बाद सवाल करने वाला और सवाल किया और जवाब के इंतजार में ठहर गया। अब आपको एक सवाल होता है, फिर 2 मिनट का वक्फा देती, कई को दिमाग उस तरफ मफजूल होना और उन्हें सोचना, अल्लाह हमें बनाया है, हमारी इंसानी उपज, हमारी जहनी उपज, हमारी जहनी ये क्या है कैपेसिटी, अल्लाह जानता है। तो उसके बाद ठहर कर मुखातिब अगरचे खुद फाइल हैं, उनको मालूम है सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ना तो वो गलत जवाब देने की जुर्रत रखते हैं और ना सही जवाब देना जानते हैं। गलत जवाब दे नहीं सकते, अल्लाह नहीं हुबल बनाया, लात बनाया, या आसमान जमीन, ये नहीं दे सकते। और दूसरा क्या है, सही जवाब भी देना नहीं चाहते, क्यों, दिए तो मान लेना पड़ता है, अल्लाह की वाहिदानियत मानना पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो तालीम दे रही कि अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, उसी की परस्तिश करो, उसी को मानो, उसके सिवा कोई नहीं है। ये लात हुबुल मनातूजा ये जो भी है ये सब भी तुम्हारी इफ्तिरा का ये है, ये कोई फरिश्ता कोई इख्तियार नहीं रखता, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कोई डेलीगेशन नहीं दिया है, कोई पावर नहीं दिया है, कोई डेपुटेशन नहीं है किसी का। तो ये कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये अगर कह दिए तो बस अल्लाह को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया जैसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत को मान लिया जैसा और अल्लाह की तालीमात को मान लिया जैसा। तो ये इनका प्रॉब्लम ये था। तो एक बलीग तरीके से उन्हें समझाया जा रहा है, क्योंकि अगर सही जवाब देते हैं तो उन्हें खौफ है कि मुखालिफ से उनके मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ इस्तेदलाल करेगा। अगर सही जवाब देती हाँ अल्लाह ही ने बनाया है, तो इनकी बात को इनो अगेंस्ट बोले जैसा, इनके बातों को झुटलाए जैसा, गलत साबित करे जैसा, हाँ हमारी बात गलत है, हमें दूसरों को जो बोल रही खल्लाकी से मुत्तसिफ कर रही ये गलत है, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, वो नहीं करना चाहते, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देते।
तब हुक्म होता है कि तुम खुद ही कहो कि सब कुछ अल्लाह का है। यहाँ कहा जा रहा है कुल लिमन माफी समावाति वल अर्द कुल लिल्लाह कतबा अला नफ्सिहि रहमा ला यजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैबा फीह ला यजमन्नकुम जमा यजमऊ से ला यजमानना, इसमें दो चीजें ताकीद की आ गई हैं। क्या है दो चीजें इसमें? ला यजमानना, ये कुम तो जमीर है, एक लाम ताकीद है और एक नून सफीला है। ला जरूर, यजमा जमा करेगा। अब नून सफीला आया तो डबल ताकीद आ गई, जरूर जमा करेगा। इला यौमिल क़ियामा, ये क्यों ताकीद की जा रही है, जोर दिया जा रहा है? इनका अकीदा नहीं था आखिरत में रोज़े महशर होगा, सब उठेंगे, सबको उठाया जाएगा, असर नो तकलीफ का इनका कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इनका तस्वुर ही नहीं था उसके मुताल्लिक। तो इस पर जोर देकर कहा जा रहा है ला यजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, जरूर व जरूर जमा करेगा वो यौम क़ियामत के दिन। ला रैबा फीह, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है, ये होने वाला है, होकर रहेगा। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, वो लोग जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में डाल लिया, खुद तबाही के दहाने पर खड़ गया, घड़े में गिरने के वास्ते घड़े के करीब खड़ी, तो वो उसे नहीं मानते। कौन नहीं मानते? अल्लज़ीना, वो लोग जो खसीरू, खसारे में डाला, उन्होंने अपने आप को डाला, अनफुसहुम, अपने आप को, खुद को, वहुम, तो वही ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, ऐ लोगों, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ और तुम हो कि परवानों की तरह गिरे जा रहे हो, पड़े जा रहे हो, यानी जहन्नम आग है, आग के पास तुम जाने के वास्ते बेताब हो, मचल रहे हो परवानों की तरह। परवाने क्या करती? परवानों को नहीं मालूम है, शमा जल रही है तो आग मरते रहती, कितने ही कीड़े मरती, ये इसमें भी रहती ना, ये जो लाइट्स जलते रहती उस पर भी कितने ही होती, ये परवानों की खासियत ही वही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना परवानों से उनको तशबीह देकर कह रहे, तुम तो परवानों की तरह जलने के लिए मचल रहे हो और मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ। तो यहाँ भी वही बयान किया जा रहा है, उनसे पूछो आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो किसका है? कहो सब कुछ अल्लाह ही का है, उसने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। तुम्हें क्यों अजाब नहीं आता? तुम पूछ रहे हो अजाब लो अजाब लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार का मुतालिबा, तंग कर दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक मौजूजा दिखाओ। अजाब 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 बोल रहे ना, 11 साल से 12 साल से आया नहीं ना अब तक, अब तो ला कर दिखाओ। हमें अगर गलत है तो हमारे ऊपर अजाब आना चाहिए ना, इसका मतलब हमें गलत नहीं है, हम सही है, हमारा दिन सही है, तो अजाब लाओ तुम। तो सब कुछ अल्लाह ही का है, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। अल्लाह के गजब पर अल्लाह की रहमत आगे है, अल्लाह का गजब नहीं, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर हावी है। इसीलिए वो नाफरमानियों और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी नहीं पकड़ लेता, अगर पकड़ता तो यहाँ कौन भी नहीं रहता था जमीन पर, हर कोई गुनहगार, कुल्लू कुल्लू मखलूकुन, क्या है वो एक हदीस से, सब गुनहगार हैं, सब गुनहगार, कोई कुल्लू आदम सब गुनाह, सब गुनाह में है, लेकिन कौन है जो बेहतर है? जो ताइब हो जाता है, जो गुनाह से तौबा करके ताइब हो जाता है, खैर उन्हें है, खैरु खैरु आदम ताइबुन, जो ताइब हो जाता है, जो तौबा कर लेता है, उन्हें सबसे अच्छा, ऐसे उन्हें गुनाह किया ही नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है क़ियामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा, ये बिल्कुल एक होनी बात है, अटल हकीकत है ये, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के गड़े में डालना चाह रहे, वो नहीं मानते, वो उसे नहीं मानते, उनके ऊपर मुकद्दर हो चुका है, उन्हें इस तरफ आने वाले नहीं। वो लहू सकना फिल लैली वन नहार वो हुआ समीउल अलीम, ये एक आफाकी हकीकत है, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है,
اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ بھی آفاقی حقیقت حکمت قدرت اس کا ہی ایک مظہر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لہو اور اس کے لیے ماں جو سکنا بستا ہے یا ٹھہرتا ہے، سکن سکون سے ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہ ہوا السمیع العلیم، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف منسوب کیا گیا. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ایک فلسفیکل حقیقت بیان کر رہا ہے اللہ. قل غیر اللہ اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ رزاق ہے، اللہ کھلاتا ہے، اس کو تم نہیں کھلاتے. جیسا کہ اور اقوام کیا کرتی، اپنے بتوں کے سامنے کیا کیا رکھتی، گنیشا کے سامنے کڑبو رہتا ہے اور کچھ رہتا ہے، کیا کیا رہتا ہے، وہ سب چوہا کھا کے جاتا رہتا ہے. اور دوسرے بھی ہیں بہت سے، ہمارے بھی کرتی نا. فتح خود ہی کھا لیتی، پکاتی سامنے رکھتی ہیں وہ کچھ، اس کے بعد خود ہی اس کو کھا لیتی. قل اغیر اللہ اتخذوا، قل کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے. یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو. ان کے سامنے، ان کو عربی آتی ہے، ہمیں نہیں آتی، ان کو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، آج فرشتہ کیا لایا، کیا بات آئی، کیا حکم آیا، یہ سب کھوج میں رہتے تھے. کیوں؟ جاننے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے. معلوم ہوتا تھا ان کو، طاق میں رہتے تھے. قل آپ کہہ دیجئے، غیر کیا سوائے، غیر اللہ اللہ کے سوا، اتخذوا میں بناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو ان لوگوں سے کہ اللہ کے سوا میں بناؤں ولیہ. ولی کسے بولتے ہیں؟ حامی، ناصر، کارساز، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مدد کرنے والا، ہماری حاجت روائی کرنے والا. میں بناؤں کیا، میں بناؤں اللہ کے سوا کسی کو؟ آپ کہو ان لوگوں سے. فاطر السماوات والارض، اللہ کو چھوڑ کر بناؤں جو بنانے والا ہے سماوات کا اور زمین کا. فاطر کسے بولتے ہیں؟ فطرہ، تخلیق میں ہی آتا ہے، بنانے والا، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا. یہ ہے زیادہ ایکسپلینیشن اس کا ہے، میں کر کے بھی ہوں، پھر کبھی بیان کریں گے. فاطر، تخلیق اور کیا، جالا، یہ سب کب کب استعمال ہوتی ہے، یہ سب ایک ہی مفہوم میں آتی. بدا، بدا کسے بولتی ہیں؟ کوئی چیز نہیں ہے اس سے بنایا اللہ، یعنی انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی ہے مٹی سے بنایا، تو یہ تخلیق میں آتا ہے، خلاقی میں ہے. کوئی چیز ہے اس سے بنایا جا رہا ہے، مٹی ہے مٹی سے انسان کو بنایا. فرشتے کو نور سے بنایا، نور کوئی چیز ہے اس سے بنایا. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے بغیر بنا رہا ہے، تو وہ بدا سماواتی والارض. بدا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی میٹیریل نہیں ہے، اس کے بغیر بنا رہا ہے، تو بدی، بدی اس سماواتی والارض. بدا کا تو بنانا، کسی چیز کے بغیر بنانا. بدی اسم الفاعل ہے جو بنا رہا ہے کسی چیز کے بغیر. سماوات آسمانوں کو کوئی چیز نہیں ہے اس کے بغیر بنا رہا ہے. زمین کو بھی نور تھا، فرشتے بنائے. مٹی بنا دیا تھا پہلے ہی، اس کے بعد انسان بنایا. لیکن جو آسمان اور زمین بنائے اس میں بدی کا ورڈ آتا ہے، کیونکہ کوئی چیز نہیں تھی، بنایا. فاطر السماوات والارض، بنانے والا آسمانوں کا اور زمینوں کا. وہ ہوا یتیمو، وہ کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ رزاق ہے. ولا یطعم، اور وہ کھاتا نہیں، وہ نہیں کھاتا، اس کو تمہیں کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں راز و نیاز وہ جو نذرانے چڑھاتی نا، وہ سب اس کو ضرورت نہیں، وہ کھلاتا ہے، وہ کھلانے والا ہے. یہ لوگ، یہ غیر اقوام بھی نہیں جانتے، سب کیا کیا پیسے خرچہ کرتی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، پھولا ہونا ان کو، فروٹس ہونا، سویٹس ہونا، کیا کیا ہونا ہے. آفیسوں میں بھی کرتی ہیں، ہر جمعہ آفیسوں میں بھی کرتی ہیں. قل آپ کہہ دیں، انی بے شک میں، یقیناً میں، امرتو، امرتو امرا یا مرو سے حکم کون دینا سا پھر رہا ہے یہ؟ دیا گیا. پیسو وائس، ہاں پیسو وائس ہے، مجہول ہے.
मैं दिया गया, मुझे हुक्म दिया गया, अन के अकूना, मैं हो जाऊं, काना यकूनु से अकूना, मैं हो जाऊं, अव्वला, अव्वला मन अस्लमा, पहला ईमान लाने वाला इंसान मैं हो जाऊं, मुझे हुक्म दिया गया है, हुक्म मानने वाला, सरे तस्लीम खम करने वाला, इस्लाम कबूल करने वाला, यानी अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला, मैं सबसे पहला आदमी मैं हो जाऊं। वला तकूनन्ना, तो हरगिज ना हो, मिनल मुशरिकीन, तो शिरक करने वालों में हरगिज ना होना। कहो ऐ नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से इन लोगों को समझाना मकसूद है। अल्लाह को छोड़ कर आप कहो लोगों से कि मैं अल्लाह को छोड़ कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, वली बना लूं, हामी बना लूं, मेरा मददगार बना लूं, कारसाज बना लूं? उस खुदा को छोड़कर जो जमीन व आसमान का खालिक है, फातिर समावाती वल अर्द, और जो रोजी देता है, युतम, वो रोजी देने वाला है, युतम खिलाता है, वो हमें खिलाता है, रज़्ज़ाक़ है, और खाता नहीं है, वला युतअम, और वो खाता नहीं, वो नहीं लेता, वो किसी से मांगता नहीं, वो खिलाता है सबको। और उसके आगे कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सरे तस्लीम खम करूं, सबसे पहला मुसलमान मैं हो जाऊं। और वला तकूनन्ना, और मुझे ताकीद की गई है कि कोई शिरक करता है तो करे, मैं बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो जाऊं। ला तकूनन्ना, तुम हरगिज नहीं हो जाना, अल्लाह कह रहा है, तुम हरगिज नहीं हो जाना मिनल मुशरिकीन, दूसरों का छोड़ो, दूसरों को तुम सिखाना है, तुम नहीं होना, तुम सबसे पहले अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करने वाले होना। इसमें भी एक तारुस का बयान है, यानी ये जो तशबीहात के जरिए दी जाती है ना, मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना खुदा बना रखा है, वो सब अपने इन बंदों को रिस्क देने के बजाय उल्टा उनके रिस्क पाने के मोहताज है। नहीं, बुता क्या है, बुता के सामने खाना रखना, उनकी पूजा करना। हाँ, तो ये बुतों का मामला क्या है, उन लोगों को इनो खिलाना, उसके ऊपर मक्खी बैठी तो इनो उड़ाना, उनकी सफाई करना, उसे दूध से धोती हैं, पहले पानी से धोती हैं, फिर दूध से धोती हैं। किसको धोती हैं ऐसा पता है आपको? वो जो है ना पूरा बुता। खेत ना बुता हाँ हाँ, वो सबको नहीं पता है। वो नहीं, सबका नहीं, सबका नहीं, एक जगह होता है वो, ये जो सोमनाथ टेम्पल है, लिंगा। हाँ वो कुछ है जहाँ हाँ पहले पानी से हाँ धोती, उसके बाद दूध से। अब दूध से धोए तो क्या हालत होगी, हाँ, दूध दही बन जाता है नहीं थोड़ी देर में। उसके बाद मक्खियाँ, हाँ, कीड़े। जी सो अनइमेजिनेबल थिंग्स रियली। पढ़े लिखे आदमी ऐसे काम करते हैं तो नहीं उन्हें करते। कितनी गुमराही में होंगे, नहीं कितनी लाइक उन्होंने एक तो वेस्टेज भी ना पूरा शमसी वो। भी। और इट्स ए पिटिएबल कंडीशन, नहीं इट्स हाँ बिल्कुल। हाँ अखिलत नहीं एकदम दिया उनका, गया। जी हाँ दिमाग ब्लैंक हो गए जैसा हाँ, बिल्कुल अकल से ब्लैंक। काम दे रहे हैं, नहीं अकल दिया है हाँ अल्लाह, दूसरे दुनिया में बेकार हम्म की चीजों में डाल रहे हैं, जहाँ डालना है वहां नहीं डाल रही, तकलीफ नहीं को नहीं डाल रहे। पहचान रही, खालिक को नहीं पहचान रही, तकलीफ को पकड़ कर बैठ गई। पत्थर अल्लाह पैदा करिया, पैदा करने वालों को नहीं पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं। क्या है इनका, अलमिया है इनका, ट्रेजिडी। कोई फिरौन खुदाई के ठाट नहीं हो सकता जब तक उसके बंदे उसे टैक्स और नजराने नहीं देते। हुक्मरान को टैक्स दिए तो उन्हें हुक्मरानी कर सकता है, नहीं तो उसे उठा को फेंके तो कितने रेवोल्यूशन हो गए ना, उठा को फेंक दिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और कौन से रेवोल्यूशन हुए। तो इंसान इंसान ही है, कितना ही वो ऊंचा हो जाए वो इंसान ही है। ये खल्लाक तो नहीं हो सकता, खिलाने वाला तो नहीं हो सकता, खिलाने वाला अल्लाह ही है। वो खुद नहीं खाता, किसी से नहीं लेता, वो खुद नहीं लेता। ये इनका एक और भी था कि अल्लाह को खर्च तो युखरिजुल्लाह खज़न हसना फयुज़ाइफु खैरन कसीरन, बोले तो ये शिकायत करते थे क्या अल्लाह फकीर हो गया है क्या, और नहनु अगनिया, और हम बहुत मालदार हैं, हम दें उसको, अल्लाह को दें। ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह नहीं ले रहा,
अल्लाह अपने बंदों को दे रहा है, जो उन तुम्हारी इस्तिताअत देख रहा है। अल्लाह खिला सकता है, उसे भी खिला सकता है, उसे भी दे सकता है, लेकिन तुम्हें देकर देख रहा है कि तुम्हारे में वो जज्बा है या नहीं, खैर का, सदकात का, ये जो चाहिए एक इंसान में चाहिए वो है या नहीं। वो बिल्कुल आजमाइश है और दूसरा कुछ भी नहीं। अल्लाह चाहे तो उनको भी गनी कर दे। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कह दीजिए आखिर में ला रहा है कि कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े खौफनाक दिन मुझे अजाब भुगतनी पड़ेगी। मैं अगर नाफरमानी करूं, अल्लाह के अहकामात से हुक्म अदोली करूं तो क्या होगा, मैं आखिर में अजाब भुगतना पड़ता है। ये अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कलामी उनको समझा रहा है कि अगर तुम्हें नाफरमानी करे तो देन यू विल बी इन द हेल, तुम्हें रहती जहन्नम में। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालकर ऐसा बयानिया एक अंदाज होता है ना, ये भी तर्ज तकल्लुम वैसा ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पर नहीं किया जाएगा। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मैं भी इसमें रहूंगा। तो दूसरों की क्या औकात है, अल्लाह के तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली बोलने का एक अंदाज। मैं युसरफु अनहु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। उस दिन, मन बोले तो जो यहाँ मौसूला है, उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया। फकत फास फमन ज़हज़हा मिनन नार वादिखिलनल जन्ना, वो कुछ ऐसे वर्डिंग्स है ना। फकत फास, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो किस में आ गया, फौज में। उस सबसे बड़ी कामयाबी वही है। उस पर अल्लाह ने यहाँ कहा जा रहा है एक अलग अंदाज में, उस दिन जो सजा से बच गया और उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया। जो बच गया उस पर अल्लाह का बड़ा ही रहम हो गया, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फौजुल मुबीन, डिस्टिंक्ट कामयाबी, खुली कामयाबी, नजर आने वाली कामयाबी, सरी कामयाबी। अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वइन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहे, वइन अगर, यमसस्का, मसा यमस्सु से यानी छूना, कोई तकलीफ तुम्हें डालना, तुम्हें पहुंचाना चाहे, यमसस्कल्लाह बिदुर्रिन, कोई तकलीफ, फला काशिफा लहु, तो कौन बचा सकता है, फला तो नहीं, काशिफा लहू, दूर करने वाला, लहू उसका कोई नहीं है। कोई मुश्किल अल्लाह डालना चाहता है तो कौन दूर कर सकता है, अल्लाह ही मुसीबतें डालता है, अल्लाह ही दूर करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इल्लाहु, उसके सिवा कोई नहीं। वो इन, और अगर, यम सस का, वो पहुंचाए तुम्हें बिखैरिन, कोई भलाई अगर तुम्हें पहुंचाए तो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो पहुंचा सकता है तुम्हें खैर, बरसा दे सकता है आसमान से, खैर ही खैर, छप्पर फाड़ के दे सकता है। आने वाहिद में कई ऐसी कौमें हैं जो आने वाहिद में बहुत उरूज को पहुंच गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुन लीजिए, कैसे गठरिये थे, चरवाहा, नखीब, बहुत ही नहीफ, कमजोर है। आने वाहिद में एक ही दिन गुलेल मारा, जालूत को मारा। पहले ही अनाउंस हो चुका था कि तालूत अपने बेटी को शादी करेंगे, शहजादी, पैगंबर की बेटी, बड़ा पोजीशन, उनको शादी करेंगे। एक तो शहजादी से शादी हो गई, अच्छे ऊंचे खानदान में चले गए। और दूसरा क्या हुआ, बाद में उनके इंतकाल के बाद, तालूत अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद पूरे सल्तनत के मालिक बन गए। वो एक वाकया तो ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते। अब यहाँ पूरा पूरा उसका इतलाक होता है। अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है, किसे भी नवाज सकता है, किसे भी खाली कर दे सकता है जिसके पास ऑलरेडी है, और किसे भी जो कुछ भी नहीं है, तवंगरी कुछ भी नहीं है उसके पास, उन्हें 10 नगर है, उन्हें पूछ रहा है, दूसरों के पास ले रहा है, उसे है ना एकदम तवंगर बना दे सकता है अब अल्लाह। हो रहा है ना ये, अब जलजले, वो स्टॉर्म आया ना हिमाचल प्रदेश, पूरे हम्म विलेजेस खत्म हो गए ना पूरे, हाँ आन के आन में हम्म एक सेकेंड में पूरा चले जाता है। नहीं, हम्म
हाँ अल्लाह मुफ्त नाबूद चाहा हो तो जाता है, अल्लाह चाहा तो। हम्म, अल्लाह चाहा तो बचा भी सकता है, अल्लाह चाहा तो बर्बाद भी कर सकता है। और ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। वो आगे तो भी एक कह रहा है एग्जाम्पल इंसान के वास्ते एग्जाम्पल ये रहते रहते हाँ, कुछ भी नहीं जैसा हो जाता देखो। कुछ भी नहीं जैसा, एज इफ था ही नहीं कुछ, वैसा हो जा क्या सकता है। बीच नहीं। एकदम ये मोरल है, ये लोगों के वास्ते इबरत है हर चीज में। अब आगे भी कह रहा है वो हुवल काहिरु फौका इबादी वो हुवल हकीमुल खबीर, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है। वो हुवल काहिरु, काहिर है, काहिर बरसा सकता है, फौका अपने ऊपर। अब यहाँ काहिर का मतलब कामिल इख्तियार रखने वाला, तसल्लुत रखने वाला। वो हमारे उसके दो उंगलियों के दरमियान ही, सबकी जाने जैसा चाहे। अल्लाह कहता है कि मेरे दो उंगलियों के दरमियान सबके कुलूब है, जैसा चाहे फेर दे, गुमराही की तरफ या नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ। वो अल्लाह देखता है, उसका डिसीजंस पूरे किस पर है, अपनी हिकमत रब पर है। वो हुवल काहिरु फौका बोले तो ऊपर, इबादी ही अपने बंदों पर पूरा पूरा इख्तियार रखता है अल्लाह। वो हुवल हकीमुल खबीर, अब इख्तियार रखने के बावजूद उसकी हिकमत गालिब है हर डिसीजन पर। हालांकि वो खबीर है, जानता है सब कुछ, और कादिर मुतलक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका ये दाना है और बाखबर है, हर चीज से बाखबर है। हमें क्या है, क्या कर रही है, कैसा हमारे नियत है, हर चीज से बाखबर है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादता, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, कुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम वो ऊहिया इलैया हाज़ल कुरानु लिउन्ज़िरकुम बिही व मम बलग अइन्नकुम लतशहदूना अम्मा अल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला उशहिद कुल ला उशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से कहा जा रहा है कि आप इनके लिए जिम्मेदार नहीं, आप आराम से रहिए, आपको पहुंचाना आपका काम है। अब इनसे कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, उनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, मैं जो कर रहा हूँ, रिसालत का काम कर रहा हूँ, कितनी जान फशानी के साथ, कितनी सरफरोशी के साथ, जान हथेली पर रखकर तायफ को गए, वहां से वापस आए, क्या क्या मुश्किलात, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सब कामों पर कौन गवाह है? अल्लाह गवाह है। तुम्हारे मेरे दरमियान अल्लाह गवाह है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा रद्द अमल क्या है, व्हाट्स योर रिएक्शन, व्हाट आर यू डूइंग विथ मी। मैं तुम्हारी फलाह बहबूदी के लिए कर रहा हूँ और तुम उल्टा क्या कर रहे हो, मुझे अजियतें पहुंचा रहे हो, तकलीफें दे रहे हो। इस पर सब अल्लाह गवाह है, अल्लाह जान रहा है। और ये कुरान ने मेरी तरफ बजरिए वही भेजा गया है। वल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, ऊहिया वही किया गया है, इलैया, इला और या का मुरक्कब इजाफी है। यह इला तरफ, या मुतकल्लम मेरी तरफ, मुझ पर वही की गई है। हाजल कुरानो, ये कुरान, किस लिए, ली लाम तालील, वजह बताने के लिए, ली उनज़िरकुम, ताकि मैं तुम्हें इंजार करूं, तुम्हें डराऊं, यानी तुम्हें वार्न करूं, बिही इससे, कुरान की तालीमात के जरिए तुम्हें वार्न करूं। वमम बलगा, और जिस जिस तक वो पहुंचे, आइन्नकुम, क्या तुम, बेशक लशतशदून, तुम गवाही देते हो। अब इतना हो गया ना, अब तुम गवाही देते हो क्या, अन्ना के मा साथ, माल्लाही साथ अल्लाह के, आलिहतन कोई माबूद नहीं है, उखरा दूसरा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम गवाही दे सकते हो? क्या इतना तुम्हारे में करेज है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कह सकते हो? खुल, आप कह दें, ला अशहदो, मैं गवाही नहीं देता। खुल, आप कह दें, इन्नमा, सिर्फ, हुआ इलाहुम वाहिद, वही है अल्लाह, सिर्फ यक्ता, वाहिद, एक ही है। व इन्ननी, और बेशक मैं, बरी
बेजार हूँ मैं, बरी हूँ मैं, अलग हूँ, खुद को अलहदा कर रहा हूँ, मिम्मा मिन प्लस मा, उससे जो तुशरिकून तुम शिरक कर रहे हो, उससे मैं तो बरी हूँ, मैं तो नहीं करता। कुल या अय्युहल काफिरून में भी वैसा ही है, कुछ मफहूम वैसा ही है। कहा जा रहा है कि और ये कुरान मेरी तरफ बजरिए वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिसको ये पहुंचे सबको मुतनब्बे कर दो, सबको वान कर दो। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ ही दूसरे खुदा भी हैं? कैसा क्वेश्चन है, देखिए, एक सर्चिंग अंदाज, सर्चिंग वे ऑफ फाइंडिंग आउट, फिगर करने के लिए। क्या वाकई तुम, क्या सही भी, सच भी? अब हम भी पूछते नहीं, हमें गैर यकीनी अंदाज होता है कि इन्हों दिल में कुछ और है, इनके ऊपरी कुछ और, जबान से कुछ और, जबानी कलामी कुछ और बोल रही, तो तुम हमें कैसा पूछते हैं उनको? क्या वाकई तुम समझते हैं ऐसा? तुम्हारे दिल में ऐसा है? तुम्हारा जहन ये कबूल कर रहा है? हा? ये सर्चिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या वाकई तुम कह सकते हो, क्या ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी है? नहीं दे सकते तुम। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग कहो, मैं तो उसकी शहादत हरगिज नहीं दे सकता। कहो खुदा तो वही एक है और मैं उस शिर्क से कतई बेजार हूं, मैं अलूफ हूं तुम्हारे से जिसमें तुम मुब्तला हो। कोई काम है उसके लिए ये बहुत आ रहे हैं, ये तो थोड़ा तवील तलब है, तफसील तलब है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वइय्याकुम। वालेकुम सलाम।